Hello everyone. In this video students, we will discuss about four standard integrals. Number 1, integration of tan x dx equal to log sec x plus c or log minus log cos x plus c. How to find this result, students? For this, we can written as tan x equal to sin x upon cos x. Okay. Put cos x equal to t. Differentiating both sides with respect to x, we get differentiation of cos x minus sin x. dx equal to dt. Differentiation of t dt upon dx by cross multiplication. Okay. Or sin x dx equal to minus dt. Putting the value sin x dx minus dt upon cos x equal to t. That is equal to minus 1 upon t dt, right? Integration of 1 upon t equal to log t minus log t. Here putting the value of t equal to cos x. Okay. Integration of tan x dx equal to माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c. ये रिजल्ट कैसे आया स्टूडेंट्स? cos x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sec x, राइट? हियर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ log m upon n इक्वल टू log m माइनस log n और log 1 माइनस log sec x, right? Plus c. Log m upon n equal to log m minus log n, and we know that log 1 equal to 0 minus log 1 equal to 0 minus log sec x plus c. By multiplication of minus minus we get plus log sec x plus c. The integration of tan x dx equal to log sec x plus c or minus log cos x plus c. Okay. Second, integration of cot x dx equal to log sin x plus c. Similarly, we can prove that students, cot x can be written as cos x upon sin x dx. Okay. Put sin x equal to t. Differentiating both sides, we get cos x dx equal to dt. That is equal to dt upon t. Integration of 1 upon t equal to log t plus c. Putting the value of t equal to sin x. The integration of cot x dx equal to log sin x plus c. Okay. Number 3, integration of sec x dx equal to log sec x plus tan x plus c. Okay. Or that is equal to log tan pi by 4 plus x by 2. Okay. Plus c. यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x plus tan x plus c होता है, या log tan pi by 4 plus x by 2. ठीक है. इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स?
sec x dx can be written as sec x equal to 1 upon sec x equal to sec x multiplying by sec x minus tan x and dividing by sec x minus tan plus x, ओके dx। हमने क्या किया है कि न्यूमरेटर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया है और फिर इसको क्या किया है, उसी से डिवाइड किया है ताकि वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, ओके। दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब आप देखो स्टूडेंट्स sec x प्लस tan x का ये डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तो उसका डायरेक्ट हम बताए थे क्या हो जाता था, इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर यानी sec x प्लस tan x, ओके। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x हो गया। सेकेंड रिजल्ट स्टूडेंट्स कैसे आएगा, उसका ये मेथड है sec x dx कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x dx and 1 upon cos x can be written as sin pi by 2 plus x, sin 90 plus theta equal to क्या होता है, cos theta, ओके। अब देखो 1 upon, we know that students sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta, so similarly here apply the formula sin pi by 2 plus x equal to 2 sin, अब देखो इस एंगल का हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx, यहां अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स हम कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, ओके। डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन, अब जब इसको डिवाइड करोगे cos स्क्वायर से तो एक तो कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 tan x tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx, ओके। ये 1 अपॉन होगा क्योंकि हम न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं ना, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ऐसे ही डिनोमिनेटर में डिवाइड किए, जैसे न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे cos स्क्वायर एक्स बाई पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 तो 1 अपॉन होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन 2 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx। पुट tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। तो आप देखो ये 1 बाई 2, ये पूरा ये पोर्शन, इस पूरे पोर्शन के प्लेस में हम क्या पुट कर लेंगे, dt, तो हो गया dt अपॉन ये क्या हो गया t, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t log t प्लस c एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ओके। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू, इसके दो इंटीग्रेशन होते हैं, या तो log sec x प्लस tan x प्लस c या log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक एक्स dx इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी आर लॉग tan x बाई 2 ओके प्लस सी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस किया। विद द हेल्प ऑफ दीज इंटीग्रल्स स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स ओके। फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स गिवन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x plus alpha okay। in this question students x can be written as x plus alpha minus alpha okay upon sin x plus alpha। हमने क्या किया इस x में अल्फा ऐड किया और अल्फा को सब्सट्रैक्ट किया ओके। अब देखो ये a समझो और ये b समझो। अप्लाई फार्मूला हियर sin a minus b। We know that students formula of sin a minus b, sin a minus b equal to sin a into cos b minus cos a into sin b। Apply this formula, we get sin x plus alpha into cos alpha minus cos x plus alpha into sin alpha upon sin x plus alpha dx okay। Dividing separately we get first term sin x plus alpha sin x plus alpha cancel, we get only cos alpha minus sin alpha and cos x plus alpha upon sin x plus alpha cot x plus alpha okay dx। cos alpha dx minus sin alpha into cot x plus alpha dx। अब देखो स्टूडेंट्स cos alpha इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसे आउट ऑफ इंटीग्रेशन करोगे cos alpha integration of 1 dx minus sin alpha out of integration we get cot x plus alpha dx or cos alpha integration of 1 with respect to x equal to x minus sin alpha integration of cot x। we know that integration of cot x equal to log sin x, so log sin x plus alpha ओके। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस अल्फा 1 होगा तो डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस c ओके। तो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ साइन x अपॉन साइन x प्लस अल्फा, ये इंटीग्रल हो गया ओके। सेकेंड क्वेश्चन गिवन साइन 2x अपॉन sin 5x into sin 3x dx। Here students 2x can be written as 5x minus 3x upon sin 5x into sin 3x। यहाँ स्टूडेंट्स हम करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर में एंगल है 5x 3x इसके फॉर्म में न्यूमरेटर वाले एंगल को चेंज करते हैं ओके। जैसे यहां भी देखो इसके फॉर्म में हम क्या किए हैं ऊपर वाले एंगल को चेंज किए हैं ठीक है, वही वर्क यहां भी। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, साइन ए साइन 5x cos b cos 3x minus cos a cos 5x into sin b sin 3x upon sin 5x into sin 3x dx ओके। अब इसको आप डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर sin 5x कैंसिल, cos 3x sin 3x cot 3x माइनस इसको डिवाइड करो sin 3x कैंसिल, cos 5x अपॉन sin 5x cot
5x, okay, dx. Integration of cot 3x log sin 3x and differentiation of 3x 3 divided by 3 minus log sin 5x and differentiation of 5x 5 divided by 5 plus c, that is equal to 1 upon 3 log sin 3x minus log sin 5x plus c, okay, 1 upon 5. This is a answer, okay. Example number 3 students, dx upon sin x minus alpha sin x minus बीटा. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये जो एंगल x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है, इसी फॉर्म में हम न्यूमरेटर को लिखते हैं. देखिए उसका तरीका क्या है. जैसे x माइनस बीटा x माइनस अल्फा अगर हम न्यूमरेटर में लिख दिया तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी अल्फा माइनस बीटा हमने एक्स्ट्रा यहां लिखा. ठीक है, हम देखो इसको पहले और इसको बाद में भी कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा ये बीटा माइनस अल्फा आएगा. दोनों तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आंसर में चेंज आएगा. तो इंटीग्रेशन के जितने प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं उतने टाइप्स के जो है आंसर आते हैं. तो हम ये ऑर्डर सेम होने के लिए, जैसे ऑर्डर एक्स अल्फा माइनस बीटा होने के लिए हम इसको फर्स्ट नंबर पे रखें, इसको सेकेंड. आप अगर इसको यहां लिखते हो इसको यहां, बस ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, लेकिन आपका सही है. तो हमने देखो इसको लिख लिया. अब अपान साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा. अब ये तो एंगल है, इसके साथ हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे उसका डिसीजन हम इससे करते हैं. ये अगर सेम रेशियो है, जैसे साइन साइन है या कॉस कॉस है, इस केस में हम यहां साइन लेते हैं, ओके. और अगर एक साइन है और एक कॉस है, या यह कॉस है यह साइन है, उस केस में हम यहां कॉस लेते हैं. ठीक है, तो यू शुड बी रिमेंबर इट, इसको आप याद रखेंगे. ठीक है, क्या कि साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, उस केस में साइन, साइन और कॉस हो या कॉस और साइन हो यानी डिफरेंस हो, उस केस में यहां कॉस. तो अब देखो न्यूमरेटर में एक्चुअली आपने कितना लिखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, तो उससे आप यहां डिवाइड भी करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, ताकि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े. तो दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा. दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको हम आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर लिए हैं. और हियर अप्लाई द फार्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी. ओके, साइन ए एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस बी एक्स माइनस अल्फा माइनस कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा dx. इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिवाइड करो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, वी गेट साइन एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स माइनस बीटा कैंसिल, cos x माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, cot x माइनस अल्फा माइनस cos x माइनस बीटा एंड sin x माइनस बीटा इक्वल टू cot x माइनस बीटा. sin x माइनस अल्फा sin x माइनस अल्फा कैंसिल. 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस अल्फा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस बीटा dx, और 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू log sin x, log sin x माइनस अल्फा. ओके,
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस अल्फा 1, तो डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस बीटा log sin x माइनस बीटा, ओके, प्लस c। Here apply formula log m minus log n equal to log m upon n. So it will be equal to sin alpha minus beta upon log m upon n, sin x minus alpha upon sin x minus beta plus c. It is a answer. Okay.